She first runner-up of Mrs. Grand International 2024. So it was a dream. It was a dream to become a pageant winner. But for somehow, as a responsibility, while donning the responsibility for daughter, a wife, somehow it got dwindled. It was dwindling. खो गया था वो कभी कहीं वो dream. But finally, मैंने realize किया कि I have to. This is my dream and I'll have to achieve it. And no matter what, I will. So even after being a corporate professional, a wife, a daughter-in-law, a daughter, but I still made it a point to go for this pageant and win it. It wasn't easy. The journey definitely wasn't easy. बहुत बहुत बार ऐसा लगा कि अब तो छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं. बट स्टिल मैं डटी रही और मैंने यही सोचा कि एक बार अगर सोच लिया है तो करना ही है. और जब मैं फाइनली स्टेज पे थी, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही थी एंड इन म्यांमार यंगन सिटी में, तो वो जो एक एक्सपीरियंस है व्हेन यू आर एक्चुअली ऑन दिस स्टेज, वो जो एक रश है, द एड्रेनलिन रश दैट यू गेट, दैट्स unparalleled. That's a dream for a lot of women out there, and have actually lived that dream. So it's a very overwhelming experience, extremely overwhelming experience. And all I can say is like I will not give up. मैं इस legacy को आगे लेके जाऊँगी, बहुत आगे लेके जाना चाहती हूँ. I will not lose my focus, my goal. I have a laser sharp focus in mind, and I will do to the best of my ability. I will do to take ahead the name of Mrs. Grand International. Yes, so it's been a very great journey, and for all the women out there, I would say, chase your dreams. You have to believe in yourself. Only then the world will believe in you. And chase your dreams. अपने dreams के लिए आप लड़ो, डट के रहो, and you will achieve it. When you have very clear intentions in mind, in your heart, then you will definitely achieve your dream. So go for it out there. I want to tell every Women's Day is very nearby, and I want to tell all the women out there, okay, go for it, achieve your dreams. वुमेंस डे आने वाला है, उस पे वुमेन्स के लिए, यूथ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे मैंने बोला कि बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप पे भरोसा रखो, इट विल वर्क. डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ एनीबडी एल्स, बिकॉज यू आर एन यूनिक इंडिविजुअल and you will have to, your qualities are unmatchable, you can't be, it's unparalleled. You are unique in yourself, so do not compare yourself with anybody. अपने जो क्वालिटीज़ है उसको इन्हांस करो, अंडरस्टैंड व्हाट योर स्ट्रेंथ्स आर, व्हाट योर वीकनेसेस आर. स्ट्रेंथ पे काम करो, वीकनेसेस पे काम करो, एंड देन यू विल नो. और पैशनेट, बी वेरी पैशनेट अबाउट व्हाट यू वांट टू डू. ओनली देन यू कैन एक्चुअली अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव. आपकी जीत में आपके ट्रेनर का कितना? बहुत, उनके लिए ही मैं आज यहाँ पे हूँ. उन्होंने मेरे पे भरोसा किया, तब जाके मैंने अपने आप पे भरोसा किया. शी वॉज द वन हु एक्चुअली हैंड पिक्ड मी. Miss Audrey De Silva, the founder of Audacious Entertainment, she handpicked me for this job. I just had 5 days in my hand to prepare, and I did not, like, you know, जब मेरे पास call आया Audrey ma'am का, so I was like, no, I cannot prepare for an international pageant in like 5 days. I will not be able to do that. But she believed in me. She kept encouraging me from day one. We had a 1-hour conversation when she had to convince me that nahi, you will do it. She actually made me realize that yes, I can actually go for the international pageant by preparing for 5 days. She kept encouraging me all the time. हाँ, बहुत सारे there were moments when I had to break down. I broke down several times. I did, but she did. She's always there to lift me up, as she is here today. So, yeah, she's always there to lift me up, always encouraging, always words of encouragement. And I also look up to her with everything. मुझे normally एक पार्टी में भी आजकल जाना होता है तो मैं उनसे पूछती हूँ कौन सा ड्रेस पहनना है, tell me. So yeah, she did. She has a very big, not only just in this pageant, I think for my future ahead, she'll always have a role in my future. Yeah. Okay, thank you. Thank you so much. Hi, my name is Audrey De Silva, and I am the founder of Audacious Entertainment. And my company is into a lot of entertainment activities. We curate a lot of events and shows.
one of which is we do international pageants for Mrs. Grand International and Mrs. Supranational. So हम करते क्या है कि हम इंडिया से कंटेस्टेंट्स लेके जाते हैं टू रिप्रेजेंट इंडिया मैरिड कैटेगरी में, एंड वी रिप्रेजेंट इंडिया इन इंटरनेशनल पैजेंट. बट बिफोर दैट वी मेक श्योर कि हम सारे कंटेस्टेंट्स जो है उनको एक ट्रेनिंग प्रोसेस देते हैं. सो वी मेक श्योर दैट दे आर ट्रेन फॉर द इंटरनेशनल पैजेंट. एंड येस, वी आर ऑल्सो इनटू टैलेंट मैनेजमेंट. वी मैनेज टैलेंट्स, वी क्यूरेट शोज फॉर इंटरनेशनल ब्रांड्स. सो दैट इज़ वॉट आवर कंपनी डज. जब पायल जी ने आपकी मेहनत को सराहा और अचीवमेंट करके दिखाया तो आपने उनको क्या कहा? जब पायल, ऑनेस्टली पायल तो पहले शी वॉज नॉट फर्स्ट ऑफ ऑल रेडी टू बिलीव. फिर पायल बहुत कंफ्यूज थी क्योंकि बहुत कम टाइम था हमारे पास. एंड बस पायल बिलीव्ड मी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हम पैजेंट्स कर रहे हैं और मैं पैजेंट कर रही हूँ फ्रॉम द पास्ट 5 years इंटरनेशनल. एंड मैं खुद पैजेंट बैकग्राउंड से हूँ, मैं 13 साल से पैजेंट में रही हूँ. वो मेरा भी बचपन का ड्रीम था. सो बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस पायल कुड बिलीव, बिकॉज हमारे कंपनी में आज तक जितने भी विमेन जो गए हैं रिप्रेजेंट करने, हम कहीं ना कहीं प्लेस होकर आए हैं. तो ऐसे नहीं हुआ है कि हम गए हैं और हार के आए हैं. हम कहीं ना कहीं प्लेस होते हैं, फर्स्ट रनर अप हो गया या सब टाइटल से कुछ भी, या विनर. वी ऑल्सो बीन द ओनली पैजेंट दैट हैज़ गॉट अ हैट्रिक ऑफ विनर्स. सो द काइंड ऑफ वर्क that we gain in the market, in the pageant industry. So I think that is something पायल ने appreciate किया and agree होकर आई थी. इस इंडस्ट्री में आने के लिए यंग गर्ल्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आई थिंक इस इंडस्ट्री में आने के लिए क्योंकि हम मैरिड पैजेंट करते हैं, सो लेट्स स्पीक कि यंग भी नहीं बट ऑल्सो विमेन हु आर ओल्डर. मैं दोनों एज कैटेगरीज को यही बोलना चाहती हूँ कि अगर इफ़ यू हैव अ ड्रीम देन प्लीज़ गो अहेड एंड अचीव इट. क्योंकि जैसे कि हम कहते हैं ये एज इज़ जस्ट अ नंबर. सो यू नीड टू एक्चुअली गो फॉरवर्ड एंड बिलीव इन योर सेल्फ एंड बिलीव इन योर ड्रीम. एंड कोशिश लाइफ में आपको एक बार तो करनी चाहिए. जस्ट डोंट गिव अप. अगर आपने वो ड्रीम किया है तो एक बार आके कोशिश कीजिए. नहीं तो नहीं, क्या ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा दिल टूट जाएगा, ठीक हो जाएगा फिर से. बट ड्रीम को एक बार तो आपको चांस देना चाहिए. थैंक यू. थैंक यू. नमस्कार, मेरा नाम पार्थ मलिक है. मैं मिसेस ग्रैंड इंटरनेशनल फर्स्ट रनर्स अप का हस्बैंड हूँ. आज के लिए तो मेरा सबसे बड़ा इंट्रोडक्शन यही है, इससे पहले कि मैं खुद क्या हूँ, मैं इनका हस्बैंड हूँ. बाय वर्च्यू ऑफ माय प्रोफेशन आई एम अ लॉयर, एंड इट्स अ वेरी प्राउड डे फॉर ऑल ऑफ अस दैट शी हैज़ फाइनली become the first runners up of the Mrs. Grand International. It's a big achievement for us, and I'm sure it's a much bigger achievement for her as well. And she's so elated right now that it's amazing to see, you know, the wonderful achievements she's achieved. She's like all the distance she's achieved in life to be where she is today. जब पायल जी ने आपको इस इंडस्ट्री में जाने के लिए अपने विचार व्यक्त किए तो आपका क्या रिएक्शन था? जी, शुरू का रिएक्शन तो मैंने जैसे मैं ऑफिस में था जब इनका फ़ोन आया कि मैं ऐसे सोच रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया. मैंने कहा पता नहीं ऐसे कुछ होगा, ऐसे बोलता कौन है. तो मैंने कहा आप घर आ जाओ, घर आके बात करते हैं. तो ये शाम को आई, इसने फिर रिपीट किया, इन्होंने रिपीट किया, मैं फिर थोड़ा कंफ्यूज. मैंने कहा चलो बात करेंगे इस बारे में. बट ये 2-3 हफ्ते चलता रहा ये. तो जब चलता रहा तो मुझे लगा कि एक्चुअली मैं बहुत कन्विंस्ड है और बहुत सीरियस है इस चीज़ को लेकर. तो उस दिन के बाद से मैंने इसको कभी रोका नहीं. मैंने यही कहा कि भाई आप करो, आपने जो करना है बिल्कुल. इफ़ इट्स अ पैशन, इफ़ इट्स योर ड्रीम इन लाइफ, if this is what you want to be in life, I'll stand by your side, and that's what I did. मतलब अपनी एंड से जितना मैं इसको पुश कर सकता था मैंने किया. तो मैडम घर भी संभाल रहे थे और इंडस्ट्री में भी काम कर रहे थे. जी. जो परेशानियां घर में आ रही थी वो मैनेज कैसे हो रहा? वो मैं संभालता था सर. तो जी, तो ऐसे ही था. मतलब कुछ टाइम जब ऐसा कोई परेशानियाँ नहीं थी. वी लिव इन मेरा जैसे आई लिव इन माई पेरेंट्स, तो यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं अकेला रह रहा हूँ. तो अगर हम लोग नहीं है तो घर पे कोई देखने वाला नहीं है. तो वो एक मॉम डैड का सपोर्ट भी रहता है, इनके पेरेंट्स का सपोर्ट था, मेरे पेरेंट्स का भी सपोर्ट था. तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था हम लोगों को. हाँ, बट ये ज़रूर होता है कि एक फैमिली मेम्बर जैसे आप रेगुलरिटी में आप काम कर रहे हैं घर के अंदर, कुछ चीज़ें कभी कभार मिस आउट हो जाती हैं. तो उस चीज़ के लिए मैंने कभी कंप्लेंट नहीं करी. कोशिश किया कि इनको कम से कम परेशान किया जाए. और उस चीज़ का इनको ये बेनिफिट हुआ कि अपना टाइम अपने पैजेंट की तरफ डिवोट कर पाए. So this is how we kind of in those few months that we had when she was preparing for it,
हमने वो टाइम निकाल लिया, अच्छा ही निकाला, क्योंकि आई थिंक वो जो हमने सैक्रिफाइस किया है, जो हमने उस टाइम पे मेहनत करी है, जो भी हमने टाइम अपना एडजस्ट किया, उसका रिजल्ट आज हमको बहुत अच्छा मिल रहा है सर। फ्यूचर के लिए पायल जी को क्या मैसेज देंगे आप? मैं तो भी बोलूँगा आप मूवीज़ में जाओ और करो कोई दिक्कत नहीं है, आप करिए जी। ओके।